Hello students, today we will start the third unit from your textbook, that is Tarot's Reward. Reward means what? Reward means gift or prize. So let us start. First we will read this before you read part. This is a story about a thoughtful and loving son. So this lesson means a story. It is a story about a thoughtful and a loving son. Okay, so thoughtful means what? Thoughtful means sensible, practical, samajhdar. Okay, so this lesson means it's a story. It's a story about a thoughtful and loving son. Okay, so next, he works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. So that person, that loving and thoughtful son, he works very hard. Why does he work? He works to fulfill his parents' wishes. उसके पेरेंट्स के इच्छाएं जो रहती, विशेष मीन्स इच्छाएं, उसके पेरेंट्स की इच्छाएं विशेष फुलफिल करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है. ओके, सो फुलफिल मीन्स टू कंप्लीट और टू अकम्प्लिश. फुलफिल मतलब पूरी करना. ओके, सो ये जो सन है, थॉटफुल लविंग सन, ही वर्क्स वेरी हार्ड just for fulfilling his parents' wishes, and he gets some unexpected help. So what happens? He gets some unexpected help. उसको एक unexpected help मिल जाती है. Okay, so this part, before you read, this is just something brief about this whole lesson. Okay, now we will discuss the lesson in very detail. So let us start. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Okay, so students, a young woodcutter named Taro. There was a young woodcutter. His name was Taro. He was very young, and woodcutter means what? The person who cuts the wood. Okay, the person who cuts the wood, that is called woodcutter. जो लकड़ी तोड़ने का जो काम करता है उसको वुडकटर बोलते हैं. ओके, सो दैट वुडकटर वॉज वेरी यंग एंड हिज नेम वॉज टारो, एंड he lived with his mother and father. So this woodcutter lived with his parents. Where did he live? He lived on a lonely hillside. Okay, lonely, अकेली hillside जो रहती है. Hillside मतलब what? Hillside means a sloping side of a hill. हिल मतलब टेकड़ी. ओके, और स्लोपिंग साइड मतलब जो हिल का जो स्लोपिंग एरिया रहता है. स्लोप मतलब उतार. टेकड़ी का जो उतार रहता है, जो स्लोपिंग एरिया रहता है, उसको क्या कहते हैं? हिल साइड. सो ये जो यंग वुडकटर है टारो, ही टारो लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स ऑन ए लोनली हिल साइड. वेट. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. So students, all day long he chopped wood in the forest. Chopped means what? Here meaning is given. Chopped means to cut the wood into pieces. Okay, wood के छोटे छोटे टुकड़े करना, पीसेस करना. ओके, एक वुड, बड़ा वुड रहता है, उसको कट करके छोटे छोटे पीसेस करना, दैट इज कॉल्ड चॉप. ओके, चॉप, दिस इज चॉप्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ चॉप. ओके, सो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सो पूरे दिन भर फॉरेस्ट में लकड़ी तोड़ने का काम करता था. ऑल डे, होल डे, ऑल डे, एवरी डे ही वुड कट वुड, he would chop the wood in the forest. Okay, फॉरेस्ट में पूरे दिन हार्ड वर्क काम करता था. ओके, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. ओके, दो ही वर्कड वेरी हार्ड मतलब वो बहुत हार्ड वर्क करता था, तब भी उसको बहुत कम पैसे मिलते थे. दो ही वर्क वेरी हार्ड,
ही अर्न वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसे मिलते थे इतना हार्ड वर्क करने के बाद ही. दिस मेड हिम सैड. ओके, ये जो उसका बहुत काम करने के बाद बहुत कम पैसा मिलना, ये जो थिंग्स थे इसकी वजह से वो बहुत सैड हो गया था. ओके, दिस मेड हिम सैड. For he was a thoughtful son, he wanted to give his old parents everything they needed. Okay, as he was very thoughtful, he was very sensible, बहुत समझदार लड़का था उसके पेरेंट्स का. तो उसकी इच्छा ये थी, मतलब he wanted, okay, he wanted to give his old parents everything they needed. Okay, need मतलब ज़रूरत, गरज. ओके, सो उसका ये कहना था कि उसके पेरेंट्स का जो भी नीड है, उसके पेरेंट्स को जो चाहिए, उसके पेरेंट्स को सब ला के देने का, ये उसका एक मोटिव था. ओके, उसका एक ये था, ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़का था. दैट इज़ वाई ही वांटेड टू गिव देम एवरीथिंग वॉट एवर दे नीडेड. ओके, so now let us read further. Wait. So next, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. So students, one evening what happens, वन इवनिंग. ओके, मतलब एक इवनिंग को क्या होता है, लेट्स डिस्कस. व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. हट मतलब कुटिया. ओके, झोपड़ी बोलते ना हम उसको. ठीक है. सो एक दिन इवनिंग में क्या होता है, टारो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट. टारो एंड उसके पेरेंट्स एक उस उनकी कुटिया के एक कॉर्नर में बैठे रहते हैं इवनिंग को. ओके, और क्या होता है देखो, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. और तब भी उसी टाइम पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. टू ब्लो मीन्स व्हाट, रश ऑफ अ विंड, मतलब जो विंड बहुत तेजी से बहता है उसको क्या बोलते हैं, टू ब्लो. ओके, सो दैट टाइम क्या हो रहा था, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तेजी से विंड आ रहा था. ओके, बिगैन टू ब्लो. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. It whistle means what? Whistle means pass through. Okay, अंदर जाना, pass through. Okay, here meaning is given. Whistle through means pass through with a whistling sound. Okay, whistle means to pass through with while making some sound. सो वो जो विंड था बहुत तेज़ी से आ रहा था, वो एक साउंड कर, मतलब वाइल मेकिंग साउंड इट वाज पासिंग थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट. क्रैक्स मीन्स व्हाट, जो कुटिया थी उनकी, जो हर्ट थी उसको थोड़े छोटे बड़े क्रैक्स थे. ओके, वो क्रैक्स में से ये विंड अंदर जा रहा था हर्ट में बहुत तेज़ी से. ओके, सो what happens later, it whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. So due to this wind everyone felt very very cold. और बहुत उनको बहुत ठंडी लग रही थी. All his parents and Taro, okay, three of them became very cold. Okay, they felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. Okay, so listen, students. Here, his father suddenly, Taro's father said something. So, what did he say? His father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old हार्ट गुड. ओके, सो उसके फादर बोलते एकदम अचानक से, सडनली क्या बोलते हो, आई विश, मेरी एक इच्छा थी कि मुझे एक कप ऑफ शेक मिल जाता. ओके, एक कप शेक मिल जाता. सो वो एक कप शेक मिलने से मेरा जो ओल्ड हार्ट है वो वार्म हो जाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट विंड
everyone became very cold. Okay, सबको बहुत ठंडी लग गई थी और उसके फादर को लग रहा था कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे इसी वक्त एक कप ऑफ शेक मिल गया। वो कप ऑफ शेक ड्रिंक करने के बाद, पीने के बाद मुझे बहुत वार्म फील होगा, बहुत वार्म लगेगा और मेरा जो ओल्ड हार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, डू माई ओल्ड हार्ट गुड। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर डू यू नो द मीनिंग ऑफ शेक? शेक मीन्स व्हाट? शेक मीन्स एक जापानीज ड्रिंक रहता है। ओके, शेक मीन्स इट इज़ अ जापानीज drink. You can say it is a alcoholic beverage made from rice. Okay, it's a Japanese drink. और ये ड्रिंक लेने के बाद जब किसी को बहुत कोल्ड लगता है, ये ड्रिंक थोड़ा पीने के बाद थोड़ा वार्म फील होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई हिज फादर टारोज फादर wanted to drink cup of a shake. Okay, so he said to his son Taro, his father, Taro's father said to his son, Taro's father said to him, I wish I had a cup of a shake. It would warm me and do my old heart good. Now let us see next. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called shake was very expensive. So when his father demanded a cup of shake, okay, demanded, और जब उसके पिता बोले कि मुझे एक कप शेक पीने का मन कर रहा है, तो उससे मुझे बहुत वार्म फील होगा, बहुत गर्मी फील होगी। ओके, सो ये जब when he listened from his father, okay, he became very sad. Okay, this made Taro sadder than ever. बहुत उसको वो बहुत दुखी हो गया था ये सुन के। क्यों वो दुखी हो गया था? वाई ही बिकेम सैड? वाई ही बिकेम सैड? बिकॉज द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो शेक रहता है, वो उससे जो गर्मी महसूस करता है, वो जो ड्रिंक था शेक, वो बहुत एक्सपेंसिव था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स वॉट? कॉस्टली। ओके, बहुत प्राइस था उसका। इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव दैट ड्रिंक। एंड हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ओके, सो सोचने लगा टारो कि मेरे फादर को शेक लेके देने के लिए मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि शेक बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक था। ओके, सो ही वॉज स्टार्टेड थिंकिंग। ओके, ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट हाउ डू आई अर्न मोर मनी? मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा के मेरे फादर की इच्छा कंप्लीट विश फुलफिल कर सकता हूँ, उसको एक कप शेक कैसे ला सकता हूँ। ओके, ही आस्क्ड हिमसेल्फ how do I earn more money? How do I earn money? He asked himself. Spoke with himself only. Huh? How do I get a little sake for my poor old father? How do I get a little sake for my poor old father? Okay, so he spoke something with himself only. मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और मैं कैसे मेरे पुअर गरीब पिता को एक कप सेक ला सकता हूँ। ओके, he decided to work harder than before. So उसने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं पहले से ज़्यादा बहुत काम करूँगा और आई विल ट्राई टू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड आई विल गेट कप ऑफ शेक फॉर माई ओल्ड फादर। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of a bed earlier than usual and made his way to the forest. Okay, so नेक्स्ट मॉर्निंग, उसी दिन के बाद जो मॉर्निंग आया, उसी दिन टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। वो एकदम फटाक से उसके बेड से उठ गया और ही गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल। वो उस दिन थोड़ा जब रोज़ वो थोड़ा लेट उठता था, लेकिन बट दैट मॉर्निंग ही वोक अप वेरी अर्ली। ओके, वो बहुत जल्दी उठ गया एंड ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में निकलने लगा। ओके, he chopped and cut as the sun climbed. Okay, so बहुत हार्ड वर्क करने लगा। he chopped and cut the wood. Okay, और बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा काम करने लगा उस दिन, because he wanted to earn more money to buy a cup of shake for his father. कट एज द सन क्लाइम मतलब बहुत दोपहर होने तक। ओके, जब सन ऊपर आता है, बहुत
बहुत धूप रहती है, तो तब तक वो बहुत बहुत हार्ड वर्क करने लगा, बहुत काम करने लगा. ओके. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. ओके. सो बहुत काम कर रहा था वो, और बहुत धूप थी, उसकी वजह से क्या हो गया था, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, उसको बहुत स्वेट आ रहा था, बहुत पसीना आ रहा था, और उसकी वजह से ही हैड टू रिमूव हिज जैकेट, उसको उसका जैकेट निकालना पड़ा. ओके. His mouth was dry, his face was wet with sweat. My poor old father. Okay, wait, let me explain this. His mouth was dry and his face was wet with sweat. Okay, वो काम कर कर के इतना उसको पसीना आ गया था. Sweat मतलब क्या, पसीना. His mouth became very dry and his face was wet with sweat. Okay, उसका पूरा face sweat से गीला हो गया था. Okay, my poor old father, he thought इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. ओके. सो ऐसा सोचने लगा कि मेरे फादर, मेरा जो उसके पिता के बारे में, कि मेरे फादर अभी मैं जितना गर्मी महसूस कर रहा हूँ उतना उनको गर्मी महसूस होता तो कितना अच्छा होता. क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट विंड हिज फादर फेल्ट वेरी कोल्ड. ओके. सो दैट इज़ वाई टारो थॉट लाइक दैट. Okay, next. And with that he began to chop even faster. Okay. So सोचने के बाद वो ज़्यादा, उसके फादर की याद आने के बाद वो ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा. He began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sick to warm the old man's bones. Okay. सो थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, वो ऐसा सोचने लगा कि मैं कैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकता हूँ ये लकड़ी तोड़ के. ओके. एंड ही थॉट, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, उसको एक्स्ट्रा मनी कमानी ही चाहिए. और फॉर वॉट, टू बाय द सेक, फॉर to buy the sake to warm the old man's bones. Old man's his means who? His father. Okay. उसके फादर के जो बोन्स से बहुत कोल्ड हो गए थे. बोन्स मतलब हड्डी, ड्यू टू दैट ड्यू टू दैट विंड. ओके. सो ही वांटेड टू बाय कप ऑफ शेक फॉर हिज फादर टू वार्म हिज बोन्स, टू वार्म हिज फादर्स बोन्स. ओके. सो नेक्स्ट, देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग. ओके. वो सडनली उसने काम बंद कर दिया. देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग. what was that sound he heard? could it be could it possibly be rushing water? Okay. So what happened, suddenly उसने वो लकड़ी तोड़ने का काम एकदम, he stopped that work because why, he heard some sound. उसको कुछ तो एक साउंड सुनाई दिया. ओके. he heard some sound suddenly. So he thought, could it possibly be rushing water? उसको लगा ये पानी बहने का तो साउंड नहीं. ओके. he thought like that. Okay. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Okay. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. Okay. So क्या हुआ, टारो को याद ही नहीं आ रहा था कि ये जो एरिया है इसमें कभी उसने एक पानी बहने का ऐसा स्ट्रीम, मतलब जो फ्लो रहता है वाटर का. ओके. उसको स्ट्रीम कहते. पानी बहने का कभी उसने इधर देखा है या सुना है, उसको याद ही नहीं आ रहा था. कि ही नेवर सॉ और हर्ड सच अ वॉइस, सच अ साउंड ऑफ वाटर. ओके. उसने कभी वो एरिया में कुछ देखा है या सुना है, ऐसा उसको याद ही नहीं आ रहा था. रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पानी बहने का जो साउंड है और पानी बहता है ऐसा, इन दैट फॉरेस्ट पार्ट. ओके. ही वॉज थर्स्टी. सो टारो था वो बहुत थर्स्टी हो गया था बिकॉज आफ्टर वर्किंग वेरी हार्ड. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. क्या हुआ, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत थर्स्टी हुआ था, उसको बहुत पानी की प्यास लगी थी. ओके. द एक्स, उसके बाद जो एक्स था वो ड्रॉप्ड आउट हो गया था, वो पड़ गया था, गिर गया था. ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम हिज हैंड्स.
उसके हाथ से वो एक्स गिर गया था, वो बहुत थर्स्टी हो गया था, एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, उसको जो साउंड सुनाई दे रहा था पानी बहने का, वो डायरेक्शन से वो भागने लगा। ओके, ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। सो let us wait a second. Wait. So students, what happened, he ran in the direction of that sound, जो वाटर बहने का जो उसको साउंड आ रहा था उसकी डायरेक्शन से वो भागने लगा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Okay, so what happened, Taro saw, उसने क्या देखा, ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। रॉक्स के पीछे, रॉक्स के हिडन मतलब छिपने का जो प्रोसेस रहता है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, वो रॉक के पीछे था, बहुत रॉक्स से, और रॉक के पीछे एक वाटरफॉल था। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड लिटिल वाटरफॉल। ओके, छोटा वाटरफॉल था, बहुत बड़ा नहीं था, और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो टारो सा beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling at a place where the water flowed quietly. Kneeling means what? Kneeling means get down on one knees. Okay, get down on one knees, or you can say to bend. Bend होना. Okay, knees पे, ओके, नीज पे जो ऐसा बेंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, नीलिंग। सो व्हाट हैपन, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जिधर से ये वाटरफॉल से पानी बह रहा था, ओके, क्वाइटली बहुत शांति से पानी बह रहा था, उधर वो ऐसा बेंड हो गया वाटरफॉल के पास। ओके, एंड व्हाट हैपन, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट to his lips. Okay, he cupped का मीनिंग इधर दिया, cupped a little in his hands means what, took some water in his hands. cupped a little in his hands means हाथ में थोड़ा सा पानी लेना। ओके, हाथ में वो दोनों हाथ मिला के ऐसा थोड़ा उसमें वाटर लेने का, उसको दैट इज मीन बाय cupped a little in his hands. ओके, so he took some water in his hands. He cupped a little in his hands and put it to his lips. थोड़ा पानी हाथ में लगा के उसने उसको मुंह को टच किया। If you can see here image is shown. Taro took some water from the waterfall and he touched it to his lips. Okay. So what happened, students? Listen. Wait. Okay. So after drinking that water, was it water, he is asking himself, was it water? Okay, was it sick or was it sick? Okay, वो पीने के बाद थोड़ा वाटर पीने के बाद उसको वो खुद को ही क्वेश्चन करने लगा, was it water और was it sick? ये वाटर है क्या सेक है? इट टेस्ट लाइक अ सेक, उसको ऐसा लग रहा था कि ये वाटर नहीं है, ये सेक ही लग रहा है, सेक जैसा ही इसका टेस्ट लग रहा है। दैट इज वाई ही आस्क्स क्वेश्चंस, ही आस्क्ड क्वेश्चन टू हिमसेल्फ ओनली, वाज इट वाटर और वाज इट सेक? ओके, he tested it again and again. Oh, again and again he tested it again and again. Okay, he drank again some water, okay, again and again, and always it was the delicious shake instead of cold water. Okay, वो जब भी अगेन एंड अगेन ड्रिंक करने लगा वो वाटर, उसको तब भी सेक ही लगने लगा। ही थॉट इट इज़ अ सेक ओनली। ओके, सो he tested it again and always it was the delicious shake इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड वाटर। उसको कोल्ड वाटर की वजह से उसको सेक का ही टेस्ट लग रहा था वो। ठीक है, डेलिशियस मतलब क्या, डेलिशियस मतलब इट इज़ अ टेस्ट, वेरी टेस्टी। डेलिशियस मतलब वेरी टेस्टी। वी से टूडेज फूड इज़ वेरी टेस्टी। ओके, पिज्ज़ा इज़ वेरी टेस्टी, पिज्ज़ा इज़ वेरी डेलिशियस, today's lunch was very delicious. Okay, delicious means very tasty. Okay, I have just given you the examples of delicious. So he tested it again and again, he found that it was a what, it was a shake, not a water. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home.
टारो के पास एक पिचर था. पिचर मीन्स व्हाट? अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ अ मड. जो एक मड का जो पॉट बना रहता है उसको क्या करते हैं? पिचर. ओके. सो टारो क्विकली फिल्ड द पिचर. उसने क्विकली एकदम उसके बाद जो पिचर था वो फुल, ये देखो हियर, this is the pitcher. Okay, so he filled that pitcher, that pot with that water, but it wasn't water, it was a sake. Okay, so उसने वो पूरा pitcher भर लिया उसका. Okay, sake का. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. हरी टू हरी अप मतलब बहुत जल्दी से उसके घर गया. ओके, हरीड होम. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. ओके, द ओल्ड मैन, his father was very delighted means extremely happy. बहुत हैप्पी हो जाना उसको डिलाइटेड कहते. उसका फादर था, ओल्ड फादर टारो का, वो सेक देख के बहुत खुश हो गया. ओके, वो ही डिलाइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी विद द सेक. सेक को देख के बहुत हैप्पी हो गया. ओके, आफ्टर ओनली वन सैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. आफ्टर ओनली वन सैलो मतलब व्हाट? कंज्यूम करना और एब्सॉर्ब करना मतलब कुछ हम वाटर सैलो करते हैं मतलब अंदर पानी ड्रिंक करने का जो प्रोसेस रहता है सैलो. ओके, वन सैलो मतलब जस्ट एक सिप लेने के बाद. ओके, जस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग अ लिटिल सेक, व्हाट हैपन? ही स्टॉप शिवरिंग मतलब ट्रेम्बल मतलब ऐसा वाइब्रेट होना. ओके, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग. सो एक सैलो लेने के बाद ही वो बहुत ऐसा वाइब्रेट होने लगा. ओके, एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. एंड वो डायरेक्टली ही स्टार्टेड डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. उसका जो हट का जो फ्लोर था उस पर वो डांस करने लगा, टारोस फादर. ओके, आफ्टर ड्रिंकिंग वन सैलो ऑफ द व्हाट? वन सैलो ऑफ द sake. Okay, so students, we will stop here now. We will continue remaining chapter in our next period. Okay, so what we will do, we'll continue it later. So if you like my video, if you understand, then please hit the like button and do not forget to subscribe my channel, because if you subscribe it then you will get the notification of all of my videos. Okay, so we will stop here. Bye, have a great day.